بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی جہاں ہوئی تھی وہاں میری 2 سالیاں اور بھی تھی جنہیں میں نے آج ہی پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ رشتہ آنن فانن ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دونوں ہی بے حد حسین تھی، خوبصورت تو میری بھی تھی لیکن اپنی دونوں بہنوں سے کم تھی۔ رخصتی سے پہلے دودھ پلائی کی رسم پر دونوں ہی مجھے گھیر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کم وقت حسن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ میں کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان دونوں کے سامنے مجھے اپنی کمتر لگنے لگی۔ مجھے ان دونوں کے سامنے اپنی بیوی کمتر لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کی رنگت اپنی دونوں بہنوں میں کم تھی۔ اپنی سالیوں کے مومی ہاتھوں میں مجھے اپنا ہاتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں میرا ہاتھ پکڑے اپنی مطلوبہ رقم مانگ رہی تھی، جو میری بھی 7 سے تو بہت زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسے رسم کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ 5,000 لینے ہیں تو لو، ورنہ پھر میں وہ بھی اپنی جیب میں ہی رکھ لوں گا۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا، لیکن میرے سسر نے آ کر میری ہی بات کو مقدم رکھا۔ میری سالیوں کے 5,000 کا نوٹ لے کر منہ بنے تھے۔ بہرحال رخصتی ہو چکی تھی۔ میں کچھ دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ میرا دل اپنی دونوں سالیوں پر بھی آ چکا تھا، جو کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد حسین بھی تھی۔ میرے والدین بڑے بھائی کے ساتھ سعودیہ میں رہتے تھے۔ میری شادی کے چند دن بعد ہی سب واپس جا چکے تھے۔ میں اور میری بیوی اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ بہت جلد میری بیوی نے سارے گھر کے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ حالانکہ شروع کے دنوں میں انسان کو بیوی کی سنگت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرا مزاج کچھ اور تھا۔ عورت میں کشش تب ہی محسوس ہوتی تھی جب وہ مجھ سے دور ہوتی تھی۔ جب وہ میری دسترس میں آ جاتی تو میرے لیے بے معنی ہو جاتی۔ نیلو پر بھی بس مجھے شادی کے دن ہی اچھی لگی تھی۔ اس کے بعد میری رنگین مزاجی مجھے گھر پر ہی چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ جہاں مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی میری رال ٹپکنے لگتی۔ آج کل میری آنکھوں میں میری حسین سالیاں یہاں کھٹکنے لگی تھی۔ میری شادی کو بس 1 ہفتہ گزرا تھا کہ میں نے نیلوفر سے کہا کہ چلو آؤ تمہاری امی کے گھر چلتے ہیں، تمہیں بھی تمہاری والدہ اور بہنیں یاد آ رہی ہوں گی۔ میرے سسر انتہائی شریف انسان تھے اور ان کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر نیلوفر خوش ہو گئی۔ بڑے اچھے سے وہ تیار ہوئی اور میں اس کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ یوں اچانک ہمیں دیکھ کر میری ساس بخلا سی گئی، کہنے لگی بیٹا بتا کر آتی میں کھانے کا کچھ اہتمام کرتی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں آپ کا اپنا ہوں۔ ساس تو میری اتنی سی بات پر مجھ پر نہال ہونے لگی، کہنے لگی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بیٹوں جیسا داماد ملا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے بیٹا سمجھتی ہیں تو گھر میں جو پکا ہے بس وہی سامنے رکھ دیں، میں خاموشی سے کھا لوں گا، لیکن خدارا بازار سے میرے لیے کچھ بھی مت منگوائیے گا۔ لیکن پھر بھی میرے سسر بازار سے میرے لیے چکن ٹکا، چکن کڑھائی اور گاجر کا حلوہ لے کر آئے ہیں۔ گھر پر میری ساس نے دال بنائی تھی، وہ بھی گرم کر کے رکھ دی۔ میں نے کھانا بڑے پرتکلف طریقے سے کھایا تھا۔ میری دونوں سالیاں یہاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی احمر بھائی آپ نے چکن کڑھائی تو چکھی ہی نہیں، ہمارے گھر کے پاس بہت مزے کی کڑھائی ملتی ہے، آپ کھائیں نا۔ میں ان کے میٹھے لہجے میں ہی کھونے لگا۔ بہرحال کھانا بڑے اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ پھر میں بڑی تسلی سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر جا کر برجمان ہو گیا۔ میرا واپس جانے کا کوئی موڈ ہی نہ تھا، اس لیے اپنی سالیوں سے کہنے لگا جاؤ لڈو لے کر آؤ، مل کر لڈو کھیلتے ہیں۔ مل کر لڈو کھیلتے ہیں۔ میرے ساتھ سسر تھکے ہوئے تھے، اس لیے کچھ ہی دیر ہمارے پاس بیٹھے، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے لڈو کی محفل جو جمائی تو رات کے 2 بجے تک لڈو چلتی رہی۔ بہانے سے میں اپنی پاس بیٹھی چھوٹی سالی کی تبھی کمر سہلانے لگتا، کبھی ہنستے ہوئے اس کی حسین چہرے کی چٹکی کاٹ لیتا۔ وہ تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ مجھے شاید بڑا بھائی سمجھتی تھی، اس لیے میری گستاخیوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی۔ اس دوران نیلو پر مجھ سے کوئی بار کہہ چکی تھی کہ احمد گھر واپس نہیں جانا، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں بات ٹال جاتا کہ بس ایک بار ذرا رانیہ کو ہرا دوں پھر چلتے ہیں۔
इसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। मसला ये था कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह को पुरतकल्लुफ नाश्ता करके मैं अपने घर वापस लौटा था, लेकिन मेरी सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार नीलोफर से कहा कि देखो, यहाँ पर मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती रहती हो, तो ऐसा किया करो, अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था किसी न किसी तरह मेरी सालियां यहाँ रहने आ जाएं। मुझे तो लगा था कि नीलोफर मेरी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक हैं और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बोर हो भी जाऊं तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने मेरी कोई साली यहाँ आए ताकि इसके हुस्न से मैं भी कुछ खैरा हो जाऊं। लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने दूसरे हटकन के इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी ने कपड़े धोए, इन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सर्फ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही नीलो खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी तो इसका पांव बुरी तरह से फिसल गया और वो गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची। मैं अपनी ये कारस्तान ही करके फौरन से कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर शक ना हो जाए। नीलो को यही लगा कि शायद कपड़े धोने के दौरान पानी इसी से गिरा है और वो फिसल कर गिर गई है। बहरहाल नीलोफर के बाजू पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला, देखा तो वो अपना पांव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठे रोए जा रही थी। मैं फौरन से इसके पास आया, इसे सहारा दे के कमरे में ले आया। इसका पूरा पांव नीला हो चुका था, हिलने से भी कासिर था। वो दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश था। बहरहाल मैं इसे अस्पताल ले गया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इसके पांव की हड्डी टूट चुकी थी। नीलोफर रोए जा रही थी, इसीलिए मैंने फौरन से ये खबर अपने ससुराल में बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियां घर पहुंच गई। नीलोफर तो अपनी माँ के साथ लग के रो रही थी। मेरे सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं नीलो को अपने साथ अपने घर ले जाऊं ताकि हम इसकी देखभाल कर लें। मैंने कहा, देखें, ये तो मुमकिन नहीं है, मैं अकेला घर में नीलोफर के बगैर तो रह ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप मुनासिब समझे तो सानिया को यहाँ छोड़ दें, चले, वो अपनी बहन को संभाल लेगी। सानिया मेरी बीवी की छोटी बहन थी, नीलोफर से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन देखने में नीलोफर से ज्यादा हसीन थी। सानिया भी रहने पर राजी हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गई थी। यूं मुझे भी मौका मिल रहा था। नीलो तो बिस्तर की होकर रह गई। सानिया इसे खाना तक बेड पर ला कर देती थी। पहले पहल तो मैंने सानिया से फरी होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वो मुझसे कुछ बेतकल्लुफ हो जाए, लेकिन वो मेरे मजाक पर भी संजीदा ही रहती थी, कोई जवाब ही नहीं देती थी। मैं अगर इसके करीब आने लगता तो वो दूर हट जाती, साफ कह देती कि आप जरा फासला रखकर बात किया करें। मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है। इसकी इस तरह के लहजे से कुछ समझ सा गया था कि वो तो मुझे घास डालने का भी जरा तैयार ना थी। मैं तो चाहता था वो मुझसे बेतकल्लुफ हो तो मैं मजाक में इसके साथ गुस्ताखियां कर जाऊं, तो इसी मजाक में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सानिया तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं चाहता था रात इसको देर तक बातें करूं, बेतकल्लुफी में ही अपना मकसद भी पूरा कर लूं, लेकिन अभी तक सानिया ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था। अलबत्ता किस्मत ने दे दिया था। एक बार अपने घर आया तो सानिया किचन में काम कर रही थी। असूलन तो मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में मसरूफ थी, शायद गर्मी की वजह से। इसने अपना दुपट्टा उतार कर किचन के दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज इसे देखकर मेरी नजरें बेपाक हो गई। शायद मेरी नजरों की तपिश का असर था कि एकदम सानिया ने पलटकर मुझे देखा तो बदहवास सी हो गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं गिलास लेने आया था। सानिया, मुझे जरा गिलास पकड़ाओ। तो शायद गला दुपट्टे के सामने को मेरे सामने शक्की सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इसकी इस कैफियत से हर्ज उठा रहा था। इसने शीशे का गिलास लिया, मेरी तरफ बढ़ा दिया, दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने इसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए इसका हाथ भी पकड़ लिया।
मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैंने अपनी बीवी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधी घर वाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मुझसे सख्त लहजे में बोली, कहने लगी, अहमर भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सानिया तुम्हारे हाथ तो नीलों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये कहते हुए मैं इसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने एक तारीफ से इब्तदा की थी। लेकिन सानिया तो मैं नहीं जानता था वो मेरे साथ ये सलूक भी करेगी। इसने मुझे धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा, वो फौरन किचन से बाहर निकल गई। इसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा। भला वो होती कौन थी मुझे धक्का देने वाली? मैं सोच चुका था कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। जब मैं कमरे में गया तो सानिया नीलू के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। नीलू इससे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बना रही थी, हाथ जल गया बेचारी का। मैंने बहाना बनाया था। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, मैंने तो इसका हाथ पकड़ा था कि देखो कि ज्यादा जल तो नहीं गया, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई समझती ही नहीं है। यूं मुझसे हाथ छुड़ा के तुम्हारे पास आई है जैसे मैं कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सानिया मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। नीलूफर सानिया से कहने लगी कि अहमर तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ के देख रहा था कि कितना जला है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी। लो दिखाओ। लेकिन सानिया ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई कि वो कल वापस चली जाएगी। मैं नीलू के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के रवैये पर इसे अपने घर न रखता, लेकिन मेरी मजबूरी है। फिलहाल मैं कोई मुलाजमा नहीं रख सकता और तुम्हारे पाँव का ये हाल है, तुम बगैर सहारे के चल फिर नहीं सकती, इसलिए समझाओ अपनी बहन को। कहने लगी, अब फिक्र न करें, मैं सानिया से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहनें समझता हूँ, लेकिन सानिया की आज की हरकत ने मुझे अपने ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया। वो तो मुझसे यूं हाथ छुड़ा के भागी जैसे मैं कोई बुरा शख्स हूँ। मैंने नीलूफर के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वो मुझसे उल्टा माफ़ी मांगने लगती कि बच्ची है, इसे समझ नहीं है, चले छोड़ें अहमर इस बात को। नीलूफर को मुतमिन करके मैं कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था, क्योंकि सानिया शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खाना लिया नीलूफर के साथ, इसे कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, अब देख लो मुँह सजाद, तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। नीलूफर मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने नीलूफर को दवाई खिलाई और इसे मैंने एक नींद की गोली भी शामिल करके खिला दी। इसे खाते ही नीलूफर गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब नीलूफर उठने वाली नहीं तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कहा कि सानिया, नीलूफर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें बुला रही है। मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वैसे दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वो कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा ये कहना था कि वो फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही सानिया कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने इसे बाजू से पकड़ा, कमरे के अंदर धकेल दिया, खुद भी कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर तो सानिया की रंगत उड़ने लगी। अहमर भाई अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा था, बहाने बहाने से तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सुनकर तो सानिया की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, शर्म करें, मैं आपकी छोटी बहनों जैसी हूँ, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन मेरा कहाँ ऐसा कोई इरादा था। मैं अपना जो गलीज इरादा लेकर इस कमरे में दाखिल हुआ था, इसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वो हाथ जोड़े रोती रही, बुलबुलाती रही, मेरी मिन्नत समाजत करती रही कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने इसे बर्बाद करके रख दिया। वो अब सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, वो नीलूफर को सब कुछ बता देगी। मैंने इसे धमकाना शुरू किया। मैंने कहा, देखो अगर तुमने अपनी ज़बान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम अगर ये बात सबको बताओगी तो मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी पर भी एक बदनुमा दाग लग जाएगा। अभी तो ये बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में है, बेहतर है कि तुम ज़बान बंद रखना। वो बस रोए जा रही थी। मैं इसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली ही सुबह सानिया को
तेज बुखार हो चुका था। नीलोफर ये देखकर परेशान हो गई, कहने लगी कि ये तो खुद बीमार पड़ गई, मुझे क्या संभालेगी। अब ये था कि नीलोफर सहारे से हल्का हल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो, अपनी छोटी बहन को बुला लो, वो तुम्हारी देखभाल कर देगी। मेरी दिलचस्पी अब सानिया से खत्म हो गई थी। अब इससे छोटी बहन तानिया में होने लगी थी, जो महज 16 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ बीवी मेरी ये बात भी मान गई। मैंने फौरन से फ़ोन मिलाकर नीलोफर को पकड़ा दिया, अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सानिया को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाएं और ऐसा करें तानिया को भेज दें, क्योंकि मेरा पाँव तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं इस घर को संभाल सकूं। लेकिन ये बात जब सानिया को मालूम हुई तो वो कहने लगी, नहीं, तानिया यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसकी बात पर मैंने इसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ, तानिया है ना, संभाल लेगी अपनी बहन को। सानिया मेरे इरादों से वाकिफ हो चुकी थी, छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी, कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 1000 कोशिश के बावजूद सानिया ने तानिया को यहाँ नहीं आने दिया। चंद दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सानिया खाना बना रही थी। मैंने इसे अकब से अपने हसार में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सानिया ने न जाने कब शलफ से छुरी उठाई, मेरे हाथ पे दे मारी, मेरा हाथ कट गया। मैं फौरन इससे पीछे हट गया, यहाँ तक कि गहरा जख्म था कि खून बहने लगा। मैंने इसे गुस्से से फंकार के कहा कि बदबख्त औरत, ये क्या है तुमने। वो कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। इसकी आंखें इस वक्त लहू रंग हो रही थी। पहली बार मुझे सानिया का जुनून देखकर खौफ आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे इस पर बेतहाशा गुस्सा था। मेरा जख्मी हाथ देखकर नीलोफर मुझसे वजह पूछने लगी, कहने लगी, आपके हाथ पर क्या हुआ। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से सानिया कमरे में आ गई, कहने लगी, आपा, मैंने तो अहमर भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन कहने लगे मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगे। अब इन्हें क्या ऐसे कामों की आदत है, देखना, अपने हाथ कटवा कर बैठ गए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सानिया ने मुझे हैरान कर दिया था। इसने मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने इसे गुस्से से देखा, लेकिन वो बिल्कुल बेतासुर थे। नीलोफर मुझ पर चिल्लाने लगी, आपको क्या ज़रूरत थी, देखें कितना गहरा जख्म कर लिया आपने। फिर सानिया मुझे कहने लगी, ज़रा मुझे बैडिज का सामान पकड़ाना। इसने दरवाजे में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और नीलोफर को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था, और वो थमा कमज़ोर और बेबस सी औरत का। औरत की बेबसी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर इससे हज उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल 2-3 दिन तो मैंने सानिया से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि एक कमज़ोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ बेहतर हुआ, मैंने रात के वक्त सानिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। इससे कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आ जाएगी। मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूंगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं काफ़ी देर दरवाजे पर धीरे धीरे से बजाता रहा, धीमी आवाज़ में धमकियां देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार मायूस होकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मुझे सानिया पर बेतहाशा गुस्सा था। मैंने नीलू से कहा कि देखो, काफ़ी दिन से सानिया यहीं पर है, तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी। इसे इसके घर भेजकर तानिया को बुलवा लो। लेकिन सानिया कहने लगी कि सानिया की पढ़ाई का खर्च होगा, मैं हूं ना आप लोगों की खिदमत करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब बोझलपन होने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सी तारी होने लगती थी। मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद आंखों में ना थी। अपनी इस कैफियत से तंग आकर मैं करीबी एक क्लिनिक में चला गया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी। मैं जब वो दवाइयाँ खाता तो गहरी नींद सो जाता, लेकिन इसके बाद मैंने ये बात महसूस की कि मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं ज़रा सा चलता तो मेरा सांस फूलने लगता, मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते। मैंने जब बाकायदा डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये जानकर मैं सानिया पर भड़क उठा, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और जहर मेरे पूरे वजूद में फैल चुका है। मैं रोज़ रोता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ।
ثانیہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن میں دن بدن موت کے قریب ہو رہا ہوں، لیکن میری اذیت کم نہیں ہوتی۔